Assalamualaikum students, Allied School Faiz Campus, Spring Pack 2, May 2021, Class 3. Students, you can see this is the mark sheet of Spring Pack and your total marks are 35. You have to solve this Spring Pack carefully because each subject have 5 marks. Let's start our video from subject Social Studies, Unit number 1, Geography. Lesson number 2, Maps. Page 8 and 9 for reading purpose. You have to read page number 8 and 9 for the reading of this chapter. Task is question answer. Question number 1. What would you find in an atlas? आप अटलस पे क्या क्या चीज़ें फाइंड करते हैं? अटलस कहते हैं नक्शे को, मैप होता है जो नक्शा. The maps in atlases show climatic, social and economic statistics of an area. Question number 2. What 3 things must a map have? कौन से ऐसे 3 चीज़ें हैं जो एक मैप में लाजमी होनी चाहिए? A map must have a title, a compass rose and a scale. What is question number 3? What is continent? Answer is a continent is a large solid area of land. Question number 4. How many continents are shown in on world map? वर्ल्ड मैप में कितने कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स शोन ऑन वर्ल्ड मैप. क्वेश्चन नंबर 5. राइट द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स के नाम बताने हैं. नंबर 1 इज़ यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया, एंटार्क्टिका, नॉर्थ अमेरिका एंड लास्ट वन इज़ साउथ अमेरिका. Next one is your activity. Students, you have to complete the following fact sheet about the earth. You have to write the name of 7 continents and then write the name of their oceans. This is your activity. You have to solve it by yourself. Next one is activity number 2. Fill it by using keywords. Students, you can see there are some keywords written in the box. North, southeast, southwest, northwest, east, west, south and northeast. You have to find the direction and then first you have to write the 4 names of directions: east, west, north and south, and accordingly you have to write the other names in the second box. That one is southeast, northeast, northwest and northeast. Students, you have to do it carefully with the help of these keywords. Next one is reading a map. This is your activity number 3. You can see a map. Keywords are written. Number 1 is trash, 2 is picnic table, 3 is stop sign, 4 is slide and number 5 is swings. Here are some questions written. Number 1 question is how many picnic tables are in the park? Park में कितने picnic tables हैं? You can count them and after counting we find that there are 3 picnic tables in the park. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मैनी ट्रैश कैंस आर इन पार्क? पार्क में कितनी ट्रैश कैंस हैं? ट्रैश कैंस उनको कहते हैं जिन पे आप कूड़ा फेंकते हैं. देयर आर 3 ट्रैश कैंस इन द पार्क. एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टॉप साइंस आर इन पार्क? पार्क में कितने स्टॉप साइंस लगे हुए हैं? देयर इज़ 1 स्टॉप साइन इन द पार्क. नेक्स्ट वन इज योर लेसन नंबर 3, क्लाइमेट. Students, you have to read page number 13, 14 and 15 for the reading of this chapter. Task is question answer. Number 1 question, what is climate? Climate किसे कहते हैं? किसी भी इलाके की एक लंबे अरसे तक मौसमी हालत जो होती है ना उसको क्लाइमेट कहते हैं. आबो हवा इसको उर्दू में कहते हैं. यानी उस इलाके में मौसम कैसा है, सर्द है, गर्म है, ठंडा है या रेनी सीज़न है. क्लाइमेट जो है वो हमें किसी भी इलाके की मौसमी कैफियत के बारे में बताती है. आंसर इसका क्लाइमेट इज़ अ वर्ड वी यूज फॉर यूजुअल वेदर अ प्लेस हैज़ ड्यूरिंग अ ईयर. क्वेश्चन बी है हाउ क्लाइमेट डिफरेंट फ्राम वेदर? क्लाइमेट मौसम से कैसे मुख्तलिफ होती है? आंसर है वेदर चेंजेस डे बाय डे. वेदर दिन रोज़ वेदर चेंज होता है. यानी आज अगर गर्मी है तो कल हो सकता है गर्मी ना हो, कल कम गर्मी हो. आज अगर सर्दी ज़्यादा है तो कल सर्दी कम होगी या सर्दी उससे भी ज़्यादा हो सकती है. मीन्स के वेदर इज़ चेंज डे बाई डे बट क्लाइमेट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज. लेकिन क्लाइमेट्स जो है क्लाइमेट एक लंबे अरसे के बाद चेंज होती है और इसमें ड्यूरेशन में भी 1 ईयर. क्वेश्चन नंबर 2.
डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ क्लाइमेट इन योर एरिया, आपके एरिया में क्लाइमेट की क्या क्या कंडीशन है, क्या काइंड है, आपने वो बतानी है। नंबर 1 इज़ वार्म क्लाइमेट, यानी गर्म आबोहवा भी होती है। नंबर 2 क्लाउडी, क्लाउडी का मतलब है कि बादल भी बनते हैं। नंबर 3 कोल्ड विंटर, सर्दियाँ भी आती हैं। एंड नंबर 4 इज़ मानसून टाइप, मानसून टाइप का मतलब ये होता है कि बरसात के मौसम में बारिशें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे सर्द हिस्सा कौन सा है। आंसर इज़ ग्लेशियल पार्ट मीन्स गिलगित बल्तिस्तान इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, आप किसी भी जगह की क्लाइमेट के बारे में कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन द वेदर, हम रोज़ाना उस इलाके का टेम्परेचर चेक करेंगे कि उस इलाके में मौसम की सूरत हाल कैसी है, तो तब हमें पता चलेगा कि उस इलाके की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ऑन द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स के आपने मीनिंग लिखने हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब क्या है, क्लाइमेट इज़ द वेदर ऑफ अ प्लेस एवरेज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन 2 पार्ट 2, टेम्परेचर, द डिग्री इंटेंसिटी ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस, यानी आपने हीट की शिद्दत बतानी होती है, उसको टेम्परेचर कहते हैं। लाइटनिंग, लाइटनिंग बिजली की गरज चमक को कहते हैं। लाइटनिंग फ्लैश ऑफ लाइट दैट इज़ काज्ड बाय द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द एटमॉस्फेयर। 4 part, rainfall, the quantity of rain falling within a given area. And the 5 one is season, a season is a part of year. Important note is that you have to write all the given work on your notebook. Next one is your activity, and this is your last activity. A part, make your own glossary of instruments used for recording of weather by finding the right names of the from the lesson and writing them against their meanings. स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपने एक इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहला सेंटेंस है, यूज़ टू मेजर विंड स्पीड, हवा की स्पीड मालूम करने के लिए कौन सा ऐसा आला है जो यूज़ किया जाता है, तो आपने उस आले का नाम लिखना है, दैट इज़ एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इज़ यूज टू मेजर द विंड स्पीड। नेक्स्ट वन इज़ मेजर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ये भी आपने लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर को यूज़ बच्चों एयर प्रेशर को फाइंड करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, दैट इज़ रेन गेज। रेन गेज। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर इज़ थर्मामीटर। And the last one is an instrument used to find the direction of the wind, that is anemometer. Next one is your B activity. Find the names of the instruments you have written in A and the following words in the grid. Seasons, climate, spring, summer, winter and autumn. These are the words and you have to find these words in the puzzle given below. That is your activity and you have to solve it carefully. That's all. Thank you.